Good morning, all of you. Today we will study Geography Chapter 3 Mineral and Power Resources, page number 29. Petroleum. The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum. It is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants. Petroleum and derivatives are called black gold as they are very valuable. The chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. The other major producers are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producers in India are Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है या वह ऑयल जिससे हमारी साइकिल स्मूथ चलती है, दोनों ही एक थिक ब्लैक लिक्विड जिसे पेट्रोलियम कहते हैं से प्राप्त होते हैं। यह रॉक्स की लेयर्स के बीच पाया जाता है और कोस्टल एरियाज और समुद्र में स्थित ऑयल फील्ड से ड्रिल करके निकाला जाता है। यहाँ से निकला हुआ पेट्रोलियम रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहाँ इस क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग के द्वारा कई प्रोडक्ट्स जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स का प्रोडक्शन होता है। पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव्स को ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया और कतर पेट्रोलियम की चीफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया में भी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। इंडिया में असम के डिगबोई, मुंबई स्थित बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टा में पेट्रोलियम पाया जाता है। World origin. The word petroleum is derived from Latin word petra meaning rock, oleum meaning oil. So petroleum means rock oil. पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्द पेट्रा से लिया गया है जिसका मीनिंग है रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल या रॉक से मिलने वाला ऑयल। Natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, United Kingdom and the Netherlands are the major producers of natural gas. In India, Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. The sharp increase in our consumption of fossil fuel has led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives टू फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही पाई जाती है और जब क्रूड ऑयल सरफेस पर लाया जाता है तो रिलीज़ होती है। इसका यूज़ डोमेस्टिक और कमर्शियल फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। रशिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स नेचुरल गैस के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया के जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई में समुद्र से दूर कुछ एरियाज़ में नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। वर्ल्ड की केवल कुछ कंट्रीज़ में नेचुरल गैस के अपने रिजर्व्स हैं। फॉसिल फ्यूल के बढ़ते हुए कंजम्पशन के कारण ये समाप्त होते जा रहे हैं। इन फ्यूल्स के जलने से टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं जिस कारण एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा यूज़ उस ड्रिपिंग टैप के जैसा है जो एक दिन सूख जाता है और इसी कारण फॉसिल फ्यूल की जगह दूसरे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करने की कोशिशें की जा रही हैं।
Do you know? Compressed natural gas CNG is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel. CNG एक इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है। यह पेट्रोल और डीजल से कम पॉल्यूशन करती है। नाउ कम टू द पेज नंबर 30। रेन वाटर और रिवर वाटर stored in dams is made to fall from heights. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. 1/4 of the world's electricity is produced by hydropower. The leading producers of hydropower in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. Some important hydropower stations in India are Bhakra Nangal, Gandhi Sagar, Nagarjun Sagar and Damodar Valley projects. रेन वाटर और रिवर वाटर डैम्स में स्टोर किया जाता है, जहां से यह ऊंचाई से गिराया जाता है। यह पानी डैम के अंदर से पाइप्स के द्वारा एक टरबाइन पर गिराया जाता है। टरबाइन के ब्लेड्स पानी के फ्लो के कारण घूमते हैं और यही मूविंग ब्लेड्स जनरेटर से जुड़े होते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद बहने वाले पानी का यूज़ एग्रीकल्चर में किया जाता है। वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी का 1/4 पार्ट हाइडल पावर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना वर्ल्ड के लीडिंग हाइडल पावर प्रोड्यूसर्स हैं। भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस हैं। Do you know? Norway was the first country in the world to develop hydroelectricity. नॉर्वे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला वर्ल्ड का पहला देश था। द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड। वर्ल्ड का पहला सोलर और विंड से चलने वाला बस शेल्टर स्कॉटलैंड में है। Non-conventional sources of energy. The increasing use of fossil fuel is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserve of these fuel will get exhausted. Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. फॉसिल फ्यूल के बढ़ते कंजम्पशन के कारण इसकी शॉर्टेज होती जा रही है। यह एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर इसी रेट से फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन होता रहा तो इन फ्यूल्स के रिजर्व जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही फॉसिल फ्यूल के यूज़ से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। इसी कारण सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जैसे नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करना ज़रूरी है। Solar energy. Sun's heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate. Now come to the page number 31. Power for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. एवरीडे हम सूर्य की हीट एंड लाइट एनर्जी को फील करते हैं। सूर्य से प्राप्त सोलर एनर्जी सोलर सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ की जा सकती है।
हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए एनर्जी जनरेट करने के लिए सोलर सेल्स को सोलर पैनल से कनेक्ट किया जाता है। जिन ट्रॉपिकल देशों में भरपूर धूप होती है वहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ लाभदायक है। सोलर हीटर्स, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है।